Hello students, welcome back to my channel. So in the last video, I had completed the first question of chapter 2. Chapter 2 we started Principles of Management. In Principles of Management, we completed the first question, which was Nature of Principles of Management. What are Principles of Management? They are just the rules or certain values which every organization needs to follow while managing the business. Now, what are the we also completed in it the nature of principles, which was five headings question, which is universal acceptance, flexible, general guidelines based on human behavior, and contingency. Okay, this we completed, and I told you that this particular question will come for 3 marks. Now we are moving on to the next question, which is importance of principles of management. That means why these principles of management needs to be followed, or why there is a need for principles of management. How does principles of management help us in our organization or in managing our organization? Okay, so principles of management provides a vision to managerial behavior and highly affects how management works. These principles direct the managers in achievement of goals. So principles of management, they act as general guidelines. They give a direction to the manager so that they can improve their efficiency, and they can also improve the efficiency of their employees. Okay, तो सबसे पहला इसमें देखो there are around 6 headings here. This can come importance of principles of management. This can come as a 3 marker. Okay, so you have to write all the 6 headings over here if it is asked for 3 marks. Okay, once again I will say, don't get confused between two questions. In the first chapter also there was nature of management and importance of management. Okay, now in chapter 2 you have nature of principles of management and importance of principles of management. So both the questions, the questions are the same, but the chapters are different, so you need to pay attention to it. Don't interchange the headings. ठीक है, तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है. Now the first one is importance of principle. Now in first importance of principles of management, the first heading is increase in managerial efficiency. Yes, when a manager systematically follows the certain principles of management, and then he does his work or then takes decision, then he himself improves that improves his managerial efficiency. उसका खुद का जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होता है, और साथ ही साथ वो अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर देता है. ओके, सो दैट इज how principles of management are important. Okay, because it helps in increasing the managerial efficiency, or it helps in increasing the efficiency of the managers. Okay, because they act as guidelines. आपको एक guidelines देते हैं कि okay ठीक है, ये decision लेना है, तो ये डिसीजन लेने के लिए दीज आर द प्रिंसिपल्स और ये चीज़ें आपको करनी चाहिए. ओके, तो उसके बेसिस उसको बेस रखते हुए हम डिसीजन लेंगे, तो मैनेजर्स का भी उससे एफिशिएंसी बढ़ेगा और एम्प्लॉयज़ का भी एफिशिएंसी बढ़ेगा. So what is written? Principles of management provides guidelines to managers to perform the task in different situations, due to which improvement in functioning and gain managerial efficiency is also seen. So what happens is, when principles of management are followed, they are guidelines. Okay, तो ये guidelines के basis को base रखते हुए अलग अलग situation में you just see those guidelines, and according to those guidelines, according to those principles, the managers take their decisions. This helps in improving his efficiency. Okay, like for example एक principle ये है कि division of work should be there. दैट मीन्स जिसको जितना जो काम स्पेशलाइज कर सकता है या जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन है उसको वो काम दीजिए. अब ये एक प्रिंसिपल है. अब उसको एक बेस रखते हुए इफ़ द मैनेजर सीज कि ओके ये मेरे इतने एम्प्लॉयज़ हैं, इनको मैं इस तरह से काम दूंगा, ये एम्प्लॉय इस चीज़ में अच्छा है, ये एम्प्लॉय ये वर्क में अच्छा है, तो उसको उस हिसाब से अगर मैनेजर काम देगा तो उससे क्या होगा, द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो increase
and he will be able to, the manager will be able to achieve the goals. So that is how is increase in managerial efficiency. Then there is maximum usage of and effective administration of resources. Yes, when you implement principles of management, what you're doing, all the resources, whatever resources you are having, okay, it includes raw materials, machines, capital, and as well as human resource. इन सबका जो भी यूसेज है उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं विथ मिनिमम वेस्टेज. ओके, ये पॉसिबल होता है. वाई? बिकॉज वी आर doing or we are managing the business by implementing certain principles of management. So this way principles of management actually help us in maximum usage and effective usage of resources. Okay, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको यही एग्जाम्पल दे रही हूँ, स्पेशलाइजेशन क्या है ना, जो जिसको जो काम अच्छा आता है उसको वो काम दीजिए. इससे क्या होगा, जो भी आपके रिसोर्सेज होंगे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा. ह्यूमन रिसोर्स विल बी मैक्सिमम विल बी यूटिलाइज इन द मैक्सिमम वे. जो एम्प्लॉय होगा वो सबसे कम वेस्टेज ऑफ टाइम भी कम लेगा, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज उसके पास है उसका भी वेस्टेज वो कम करके ही विल बी एबल टू अचीव द objective, or he will be able to complete the work. Okay, so that's why there is maximum usage and effective administration of resources. So mostly availability of human and physical resources are limited in a business unit. ये तो सबको पता है ना. ह्यूमन रिसोर्स जो है, हमारे एम्प्लॉइज जो है वो भी लिमिटेड होते हैं, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं. तो लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें बहुत ही मैक्सिमम और इफेक्टिव उसका यूटिलाइजेशन करना होता है, जिसके लिए प्रिंसिपल्स आर इम्पॉर्टेंट. विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इट इज पॉसिबल टू मेक मैक्सिमम यूसेज ऑफ रिसोर्सेज विद मिनिमम कॉस्ट. ओके, द नेक्स्ट इज हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस. यस, सी फॉर टेकिंग सर्टन डिसीजंस, कुछ डिसीजंस बिजनेस के ऐसे होते हैं जो लेते वक्त हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमें हेल्प करते हैं. दे गिव अस अ गाइडलाइन कि ओके, अगर ये सिचुएशन है तो ये सिचुएशन में दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल सेज, अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द डिसीजन. सो डिसीजन मेकिंग में ओके, एंड दैट ऑल्सो साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस के लिए दीज प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल. देखो, decision must always be based on facts, thoughtfulness, objectives and justifiable. Management principles provide a key role for taking appropriate decisions which are timely without being partial or being biased. मतलब impartially भी हम decision ले सकते और unbiased decision ले सकते when you are actually following the principles of management. ठीक है, सो हेल्प अस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प अस इन टेकिंग साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस टू कोप विथ चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है या जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट डजंट रिमेन द सेम. ओके, तो जो चेंजिंग बिजनेस, क्योंकि इतना सारा कंपटीशन है, देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स अराउंड अस. ओके, मार्केट में इतना कंपटीशन है, बाहर के कंपनीज आती है, फॉरेन कंपनीज आल्सो देयर, देन द इकोनॉमी में भी काफ़ी बार उतार चढ़ाव होता है. तो ये सारी चीज़ें होती है विच अफेक्ट्स द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो टू कोप अप विद दोज चेंजेस you require principles of management because they help us in taking the right decisions when the business environment is not the same. Okay, क्योंकि एक ही जैसा बिजनेस पूरे साल भर कोई कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा, एक ही जैसा सिचुएशन रहेगा और हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छा करेगा, ऐसा तो नहीं होता है, राइट. देयर आर एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, देयर आर सर्टन न्यू थिंग्स हैपनिंग, कुछ इमरजेंसी आ जाती है कभी कभार. तो ऐसे सिचुएशन में प्रिंसिपल्स ऑफ गाइड जो है वो हमें हेल्प करते हैं इन टेकिंग डिसीजंस एंड टू कोप अप विद दैट एनवायरनमेंट. सो नॉर्मली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑर्डिनरी गाइड, but management principles are necessary to meet business environment in changing circumstances. ठीक है, to fulfill social responsibility. Yes, social responsibility आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो 11th स्टैंडर्ड में था social responsibility of business, लास्ट चैप्टर था. ओके,
तो उसमें क्या था कि वी आर हैविंग सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो डाउट अवर मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट, इज टू अर्न वेल्थ। ओके, बिजनेसमैन का मेन एम होता है अर्निंग प्रॉफिट, लेकिन साथ ही साथ he has to also fulfill certain responsibility towards various stakeholders, है ना, stakeholders word आया था, that is his customers, employees, suppliers, government, environment, ये सब towards the society। ओके, तो ये सारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टूवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स, उनकी तरफ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करते वक्त प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज द एम ऑफ बिजनेस बट इट इज नॉट द ओनली एम। Development and progress of society are also the aims of business unit. By effective implementation of management principles, business unit can easily achieve the aim of social responsibility. So this way you can you fulfill your social responsibility by following management principles. Last, useful for research, training and development. Yes, principles of management help us in taking decisions regarding when is the right time for research, for when should we give training, or why there is a need for training and development of employees. ओके, तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं, ये सारे डिसीजंस लेते वक्त प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प अस। ओके, because principles of management does say that time to time you should see that your employees, you need to sharpen the skills of your employees. Okay, so time to time you need to conduct certain tests, you need to conduct certain training programs for your current employees. Okay, so this way your principles of management help us in planning about research, training and development of employees. Only by using the management principle, training task of training, education and development is possible. Like now, aptitude tests are taken for appointments in various business units. This aptitude tests are prepared and by implementing and using management principles through which appropriate employees are appointed. ये भी ज़रूरी है, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते वक्त कैंडिडेट्स का एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाता है. व्हाट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट? बेसिकली अ टेस्ट विच शोज कि वेदर द पर्सन हैज द right frame of mind, whether he is having that not the skill तो बाद में आता है, लेकिन उसमें वो एप्टीट्यूड है या नहीं, उसमें वो इंटरेस्ट है या नहीं, वो पर्टिकुलर काम करने में उतना उसको इंटरेस्ट रहे या नहीं, ये देखने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने बीएड करना है या मेरा बीएड हो चुका है, ऑल इज देयर, ओके, लेकिन जब मुझे पढ़ाने में ही इंटरेस्ट ना हो या मुझे पढ़ाना ही नहीं आता हो या I don't like to teach, then how will I succeed as a teacher? Okay, तो ये aptitude test for different professionals is taken by the companies, so that aptitude test देंगे तो right candidates to right job for right job can be appointed. Okay, so yes, here very simple answer and not very difficult to learn also. How does principles of management, how it becomes important? It is important because it increases managerial efficiency. There is maximum usage and effective administration of resources, helpful for scientific and logical decisions, to cope up with the changing business environment, to fulfill social responsibility, and useful for research, training and development. देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म भी दिया है टीमू करके, TIMU. डबल टी में आएगा टू कोप अप विद चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई में आएगा इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी. M is maximum usage and effective administration of resources, and U is for useful for research, training and development. Clear? So yes, with this we completed the importance of principles of management. तो अब तक हमने दो आंसर्स किए, एक था नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा जो अभी आज किया हमने that was importance of principles of management. Now we move on to the next. Now we will talk about certain principles of management given by certain authors. Those principles of management which have played an important role in management of an organization. So principles of management here which we are going to do is given by Frederick Taylor.
फेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट करके एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दी है, जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्ड नाम दिया है. ओके, नाउ टेलर डिफाइंड, टेलर इज फेडरिक टेलर. ओके, नाउ फेडरिक टेलर डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है. Knowing exactly what you want your man to do, and then to see that if they do it, and to see that they do it in the best and cheapest way. That means what? Scientific management says that first of all you should know what you want your employees to do. ओके, एग्जैक्टली तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे एम्प्लॉयज कैसा काम करे, क्या काम करे. ओके, ये जानना आपके लिए पहले तो जरूरी है. So first knowing exactly what you want your man to do, and then उसके बाद the scientific management says, and then to see कि वो काम जैसा आप चाहते हो वैसा वो काम आपके employees करे in the best possible, मतलब with the best efforts and with minimum cost. That is what is scientific management. Okay, now ये एक्चुअली मैंने थोड़ा सा आपको दिया है क्योंकि कभी कभार 1 और 2 मार्क्स में दे जस्ट आस्क व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो आप 2 मार्क्स में अगर पूछा तो आप इतना लिख सकते हो. ओके, ना इसको थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन किया है 3 पॉइंट्स में. ओके, सो विच आर दोज 3 पॉइंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड. एज अ चैलेंज टू ट्रेडिशनल अप्रोच. नाउ व्हाट वाज ट्रेडिशनल अप्रोच. देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच जो था ना, उसमें ये था कि बस लोगों को काम पे लगा दो, वो सीख जाएंगे अपने. ओके, कौन किसको कितना काम आता है, या ये पर्सन ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता, whether he will be able to complete this work or no, whether he has the capability or skill to do this work or no, ये नहीं है. ओके, लेबरर कोई भी फैक्ट्री में काम करने आता है उसको काम पे लगा दो. कोई भी ऑफिस में काम पे करने कोई भी कैंडिडेट आएगा तो उसको ये काम दे दो कि भाई देखो ये काम है, ये आपको करना है. पर उसको आएगा नहीं आएगा, उसमें वो स्किल है नहीं है, ये कुछ देखा नहीं जाता था. ओके, ये ट्रेडिशनल अप्रोच था. और एक ट्रेडिशनल अप्रोच में ये प्रॉब्लम थी दैट जो ओनर्स, जो एम्प्लॉयर्स थे ना, दे हैड एन अपर हैंड. ओके, तो एम्प्लॉयर्स जो है वो पूरी तरह से वर्कर्स को, लेबरर्स को एक्सप्लॉइट करते थे. ओके, वो जो बोलते थे वैसा ये एम्प्लॉयज या लेबरर्स को करना पड़ता था. ओके, सो दैट वाज अ प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल अप्रोच. अब उस ट्रेडिशनल अप्रोच में से निकल के ओके, फेडरिक टेलर हैज थ्रू हिज एक्सपीरियंस he has given different principles of management, which is known as the scientific management. Now what is this? As a challenge to traditional approach, he matlab Frederick Taylor presented scientific management as a revolutionary thought where below stated matters were considered. अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है फेडरिक टेलर ने, उन्होंने ये 3 पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा जोर दिया है. सबसे पहला, ईच वर्कर मस्ट बी असाइन वर्क एज पर हिज मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो फेडरिक टेलर ने सबसे पहले यही बात पे जोर दिया है कि आप पहले देखिए कि कैंडिडेट जो है या आपके पास जो आता है लेबरर कैंडिडेट आता है या एम्प्लॉय जो है आपका, उसको वो काम दीजिए जिसमें उसको इंटरेस्ट भी है और उसकी एबिलिटी भी हो. ओके, डिपेंडिंग अपॉन हिज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी यू हैव टू असाइन द वर्क टू दैट पर्सन. ओके, देन सेकेंड पॉइंट, ईच वर्कर शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म मैक्सिमम वर्क एज पर कैटेगरी. इसका मतलब उनको टारगेट और वो दे दीजिए. इफ यू वॉन्ट योर वर्कर्स, उनको ऐसा मत बोला हाँ ठीक है चलो आज आपको जितना काम होता है आप उतना करिए, ऐसा नहीं बोलना है. यू हैव टू गिव देम अ सेट टारगेट कि ओके आज के दिन में आपका इतना काम होना चाहिए. यू हैव टू गिव देम सम काइंड ऑफ टारगेट्स. ओनली देन, अदरवाइज हाउ विल यू कम टू नो कि उन्होंने अपना फुल एफिशिएंसी से काम किया या नहीं किया. ओके, सो ईच वर्कर शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म मैक्सिमम वर्क एज पर कैटेगरी. एंड लास्ट, each worker doing efficient work rapidly should be paid more wages, that is more than 30% to 100%. that means जो जैसा काम करता है, जो परफॉर्म करता है, उसको उस हिसाब से ज्यादा वेजेस देने चाहिए. it can be 30% more than 30% also and 100% also.
ओके ये तो आपको पता ही है, आजकल के सारे कॉर्पोरेट्स वगैरह में जाओ, कंपनीज वगैरह में जाओ, तो ये प्रिंसिपल तो फॉलो होता है। ओके गवर्नमेंट में कभी भी नहीं फॉलो होता था, गवर्नमेंट में तो वही है सीनियोरिटी के बेसिस पे, इसीलिए तो गवर्नमेंट जॉब लोग लेते हैं, क्योंकि काम करो ना करो सीनियोरिटी के बेसिस पे प्रमोशन मिल ही जाता है। बट इन प्राइवेट इट इज नॉट सो, इन कॉर्पोरेट इज नॉट सो। if you are performing well, if your performance is good, you are achieving your targets, then you are paid also more, you are also promoted. Okay, and that's why these people, the private corporates and all jo hai companies, they follow this, that each worker doing work efficiently, rapidly, should be paid more wage. Okay, so these were the 3 points on which द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड। ओके पहला पॉइंट ये है कि हर एक वर्कर को उसके मेंटल और फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से काम दो। सेकेंड, हर एक वर्कर को इंस्ट्रक्शन दो कि दे हैव टू वर्क टू द मैक्सिमम। एंड थर्ड, दोज वर्कर्स हु वर्क रैपिडली, हु वर्क वेरी वेल और हु आर वेरी गुड इन देयर परफॉर्मेंस, then they should be paid more. Okay, so these were the principles of management, this was the principles of scientific management. Okay, अगर सपोज 2 मार्क्स में आता है ना स्टूडेंट, अगर सिर्फ इतना आता है व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट इन 1 मार्क, तो आप ये शुरू का जो मैंने ये अभी बताया है ना आपको, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, वो इतना लिखोगे तो इनफ है। बट इफ इट इज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, मेनी टाइम्स दे आस्क व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ, व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो फिर आपको ये थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जो यहाँ पे नीचे के पॉइंट्स दिए है। now this scientific principles of scientific management given by Frederick Taylor. ओके वो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उसमें ये पॉइंट्स दिए हैं कि व्हाट डज दिस प्रिंसिपल से। फर्स्ट इज साइंटिफिक मेथड। ओके व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो है साइंटिफिक मेथड। दैट मीन्स whenever work is decided, first of all scientifically you understand what the work is. ये अगर ये सपोज ये एक काम करवाना है, ठीक है, तो ये काम पहले तो खुद वर्क को स्टडी कीजिए, साइंटिफिकली स्टडी कीजिए। दैट मीन्स क्या, अच्छा ये काम है, ये काम करने के लिए कितने लोग चाहिए, क्या स्किल चाहिए, ओके कितने टाइम में ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके लिए कितने लोग लगेंगे, how many employees, how many laborers will you require, okay, all that detail study, that is nothing but you do scientifically, you study the work, that is known as scientific method. To do work, scientific method should be adopted. Okay, we should think how best work can be done by analyzing the work scientifically. क्योंकि खुद पहले एनालाइज कर दो ना कि भाई काम को इस तरह से करना है, तो फिर सामने जो एम्प्लॉइज को आपको बताना है वो भी इजी हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि ओके कितने टाइम पीरियड में ये काम कंप्लीट करवाना है। ओके सो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज साइंटिफिक मेथड। देन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके प्लानिंग आप कीजिए, दैट मीन्स व्हाट, वर्कर्स शुड नॉट प्लान कि ओके हाँ हम आज कंप्लीट करेंगे, हम कल कंप्लीट करेंगे या हम बाद में कंप्लीट करेंगे, ये काम इतने टाइम में होगा, ये आप वर्कर्स पे मत डालिए। वर्कर्स विल नॉट बी एबल टू डिसाइड दैट। प्लानिंग शुड बी डन एट टॉप लेवल एंड इम्प्लीमेंटेशन शुड बी डन एट द मिडल एंड बॉटम लेवल। सो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, okay, instead workers doing planning and implementation, it should be like experts do the planning and workers should follow. Yes, workers will follow the, because उनको उतना नहीं समझ में आएगा कि ओके हाँ ये काम इस तरह से है, इसमें इतनी स्किल चाहिए, इसमें दे आर वर्कर्स। ओके तो प्लानिंग उनको मत बोलिए हाँ चलो आप ही प्लान करो, आप ही बताओ कब तक होगा, ये ऐसे आप उन पे मत डालिए। प्लानिंग आप कीजिए थ्रू एन एक्सपर्ट एंड देन उनको वर्कर्स को इम्प्लीमेंट करवाइए। ओके दैट्स व्हाट हैपेंस इन टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, है ना, फर्स्ट चैप्टर में जो हमने किया। नेक्स्ट इज जॉब एनालिसिस। ओके जॉब एनालिसिस इज द, जो भी काम है उसको बेस्ट तरीके से विथ मिनिमम कॉस्ट कैसे कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज जॉब एनालिसिस। ओके वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे फॉर 1 mark
one question can come, what is job analysis? So you have to write this. Job analysis is the best way to get work done speedily with lower cost. आपको खुद को ये पता होना चाहिए कि ये काम इतने कॉस्ट में, इतने टाइम में या इस स्पीड से कैसे कंप्लीट होगा, ये आपको पता होगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू टेल योर एम्प्लॉयज. Okay, so first you need to do that job analysis, and accordingly you have to give instruction to your workers. So first thing, job analysis is the best way to get work done speedily with lower cost. ये आएगा 1 mark में. Okay, increase productivity can reduce the cost of production after studying time study, motion study and fatigue study. Okay, इसका क्या मतलब है, अगर आपको प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, मतलब इफ यू वांट योर वर्कर्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, दे यू वांट देम टू प्रोड्यूस मोर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू साइंटिफिक स्टडी, दैट इज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिग स्टडी. व्हाट आर दीज 3, ये आगे के आंसर में आएगा, तब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी, बिकॉज साइंटिफिक मैनेजमेंट में अभी एक और क्वेश्चन है. ठीक है, तो उसमें ये डिटेल में दिया है कि व्हाट इज अ टाइम स्टडी, व्हाट इज मोशन स्टडी एंड व्हाट इज अ फैटिग स्टडी. ओके, नाउ स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बताइए वर्कर्स को, उनको पता होना चाहिए कि दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. ओके, एंड एक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस आप बताओगे कि ओके दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू अचीव एंड दिस इज हाउ आई वांट माय वर्क टू बी डन. अगर ये बताओगे देन ओनली दे विल मैच दैट स्टैंडर्ड एंड दे विल ट्राई टू मैच दैट स्टैंडर्ड. अगर ये स्टैंडर्डाइजेशन आपने ही नहीं दिया है, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया है, तो वो तो कोई भी काम जैसा चाहिए जैसा तैसा करके चले जाएंगे, तो थोड़ी चलेगा, है ना. ठीक है, सो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लिसिटी आर साइंटिफिक प्रोसेस विच शुड बी डन इन एडवांस. Equipment, time, situation of work, resources, etc. matters are to be considered for standardization. स्टैंडर्डाइजेशन जब सेट करते हो कि दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एंड दिस इज हाउ द वर्क इज टू बी डन, प्रोसेस भी समझाइए अपने एम्प्लॉयज को. ओके, सी टू इट दैट यू आर गेटिंग द इक्विपमेंट्स राइट. आप चाहते हो वर्कर्स काम करे पर उनके पास रॉ मटेरियल्स ही नहीं है, आपकी मशीन्स काम ही नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तो उसके पहले ही काम शुरू हो, एम्प्लॉयज को काम दो, उसके पहले आप देखिए कि आपकी रिसोर्सेज इंटैक्ट है या नहीं. That means you have the required equipments, you have the required raw materials, okay, you have the machines ready, fine. So that is what is standardization. Scientific selection and training, very important. As I told you in the previous slide, हमने जो अभी ये previous slide में हमने क्या पढ़ा, each worker must be assigned work as per his mental and physical ability. बस इसी पे है ये, इसी से रिलेटेड है ये साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. दैट मीन्स व्हाट, हर एक वर्कर को सिलेक्ट करते वक्त, उसको काम देते वक्त, यू हैव टू सी वेदर ही इज हैविंग दैट एबिलिटी, दैट स्किल टू परफॉर्म दैट वर्क और नो. और अकॉर्डिंग टू द skill, according to the ability, according to the capability, knowledge of the person, you should give them the work that way. Okay, selection of workers should be done scientifically. For scientific method, standards, benchmark. So benchmark मतलब क्या क्या देखोगे आप जब आप साइंटिफिक, ऐसा लिखा है ना कि साइंटिफिकली यू शुड सिलेक्ट द वर्कर्स, तो साइंटिफिकली मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जब आप सिलेक्ट करो वर्कर्स को, तो उसका एजुकेशन, स्किल, गट्स, फिजिकल स्ट्रेंथ, कुछ वर्क लेबरर्स जैसे होते हैं फैक्ट्री में काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको यू रिक्वायर फिजिकल स्ट्रेंथ, तो वो ट्रेनिंग एक्सेट्रा कैन बी कंसिडर्ड. There should be use of training to increase the efficiency of workers from time to time. That's what I said. You have to. That is one of the principles. The principle says that training is very important for your employees. आपको भले ऐसा लगता हो कि अरे मेरे एम्प्लॉयज बहुत केपेबल है, बहुत अच्छे से काम करते, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम you need to sharpen the skills of the employees, and for that you need to give them training. Okay, so that is scientific selection and training. Next is financial motivation. अभी ये हमने किया.
प्रीवियस स्लाइड में, व्हाट दैट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड में मैंने जो थर्ड पॉइंट पढ़ा वो क्या था, you if the workers are done well, performance based bonus, performance based motivation, financial motivation, you should pay them more. सिर्फ आपने बहुत अच्छा काम किया तो ताली बजा दी, उसको अवार्ड, उसको सिर्फ ऐसे अप्रिशिएट किया ओके बोलकर, ऐसा नहीं होता है ओके. फाइनेंशियल मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज. मतलब उनको टाइम टू टाइम प्रमोशन दीजिए, एक्स्ट्रा बहुत अच्छा काम करने पे बोनस दीजिए, उनको कमीशन दीजिए ओके. टारगेट्स अचीव किए तो यू हैव टू गिव देम सम काइंड ऑफ कमीशन, some kind of increments okay, or promotions. That's what is financial motivation. Different kind of motivated wages schemes are recommended. This wage must be based on the basis of individual productivity of employees. Very important. जो प्रोडक्टिविटी जो एम्प्लॉयज का अच्छा है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उनको ज़्यादा पे कीजिए. इससे दो फायदा होगा ओके. जो आपके एम्प्लॉयज ने अच्छा परफॉर्म किया है, दे विल बी मोटिवेटेड, दे विल बी इंस्पायर्ड, उनका एकदम मोरल बूस्ट हो जाएगा कि हाँ और अच्छा करूँगा, मुझे और अच्छा फाइनेंशियल, मुझे और अच्छा पैसा मिलेगा ओके, आई विल गेट समथिंग मोर, और कमीशन मिलेगा. एक ये. दूसरा फायदा क्या होता है, जो वर्कर्स नहीं कर पाए, दे विल इवन स्ट्राइक, यू नो, दे विल इवन वर्क हार्डर, दे विल फील अरे इतना इसको इतना मिला है तो मुझे भी इतना चाहिए, आई विल वर्क मोर हार्ड ओके. सो दैट्स व्हाट financial motivation. Next is economical. In scientific management, scientific and technical base are not only considered, but emphasis on low production cost is also very important. That's what here the slides in the previous slide we just studied, that we have to see that the workers work in the best possible way, and it is also not costing us much. That means in the cheapest way. So you have to see that the workers work with the best efficiency, with best possible resources, but with low cost. मतलब प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज की बढ़नी चाहिए, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होना चाहिए. ये देखने का काम जो है वो एम्प्लॉयज को करना चाहिए, सॉरी वो मैनेजर्स को करना चाहिए. In scientific management, scientific and technical base are not only considered, but emphasis, मतलब ज़रूरी, हम ये ज़रूर देखेंगे कि टेक्नोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए, मशीन्स अच्छे चाहिए, ये सब हम देखेंगे, बट उसके साथ साथ वी विल ऑल्सो सी टू इट दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो ओके. कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल मेथड शुड बी कंसिडर्ड. डेविएशंस मस्ट बी फाउंड एंड करेक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन. डेविएशंस मतलब ये कि काम देने के बाद the worker should not be, you know, the worker should not deviate from their work. They should just be focused and they should work so that your resources are not wasted. तो क्या हुआ, एम्प्लॉयज को काम दे दिया और मैनेजर अपने कैबिन में जाके बैठ गए ओके. आधा दिन बीत गया, द मैनेजर हैज नॉट कम आउट ऑफ द कैबिन टू सी व्हाट द एम्प्लॉयज आर डूइंग. और एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, खा रहे, यहाँ वहां घूम रहे, इधर उधर का बातें कर रहे. व्हाट हैव दे डन, काम जो दोपहर तक कंप्लीट होना था वो नहीं हुआ, अब वो चला गया शाम तक भी हुआ तो हुआ, नहीं तो दूसरे दिन के लिए वापस वो पोस्टपोन हो गया. सो व्हाट हैव यू डन, द ह्यूमन रिसोर्स हैज गॉट वेस्टेड, द टाइम हैज गॉट वेस्टेड ओके. सो दिस शुड नॉट बी देयर ओके. सो यू हैव टू वर्क ऑन कॉस्ट एस्टिमेशन. तो होगा ही, मतलब आप देखो कि आपका रॉ मटेरियल्स का कितना कॉस्ट है, उसको आप कम से कम कैसे कर सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ओके. और साथ ही साथ वर्कर्स को जो काम देते हो उसमें डेविएशन ना आए, ये देखने का भी काम आपका है. लास्ट, मेंटल रेवोल्यूशन. देयर शुड बी मेंटल रेवोल्यूशन फॉर अचीवमेंट बिटवीन owners and workers. Mental revolution, stress between owners and workers and achievement of goals becomes easy. That means mental revolution का मतलब यहाँ पे ये है, बोल रहे हैं that there should be a kind of unity, or there should be integration of individual objectives and the objectives of the workers. और ओनर्स जो है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो, क्योंकि ज़्यादातर क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स मिलते नहीं है,
एम्प्लॉयर्स का क्या रहता है, दे वांट टू पे लेस एंड वांट द वर्कर्स टू वर्क मोर. और वर्कर्स का क्या रहता है कि भाई दे वांट टू गेट मोर मनी, दे वांट टू गेट पेड मोर, बट दे डोंट वांट टू डू टू मच ऑफ वर्क. ये जो है ना, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लैश होते हैं. तो ये ऑब्जेक्टिव्स क्लैश ना हो उसके लिए साइंटिफिक तरीके से you have to come at some common ground, whereas where the owners are also happy and the workers are also happy, and there is stress free environment in the organization. Okay, so that the achievement of goals becomes easy. So this way we completed the principles of scientific management, which is scientific method, planning and implementation, job analysis, standardization, scientific selection and training, financial motivation, economical and mental revolution. Clear? So this is what you are supposed to now study for 3 marks. 7 headings are there. You are supposed to learn only around 6 of them. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म भी दिया है. जेम्स, जे से है जॉब एनालिसिस, ई से है इकोनॉमिकल, एम से है मेंटल रेवोल्यूशन, 3S, SQ, scientific method, standardization, scientific selection and training, and last is planning and implementation. So today we completed 2 answers. One was importance of principles of management, and then we did principles of scientific management. In the next lecture, I will be explaining this techniques of principles of management, and then we will move on to the next question, which is principles of management given by Henry Fayol. Okay, so I hope students you have liked my lecture. Continue watching my videos, and please subscribe to my channel. Thank you very much.